a beautiful performance, truly mesmerizing. They indeed deserve a huge round of applause. The drama had been left off on quite an exciting and suspenseful note. As we have seen in scene 1 that the interaction between student and teacher increases. So, to continue the story, let's begin with the drama. अथर्व Hey, have you completed yesterday's homework? We will have checking today. Oh, I forgot to complete. I have completed but forgot to bring you. I have completed the homework. Hey, give your book to me. By the way, did you complete that chemistry test? Sir will dictate answer today. And the one who will get out of will get a chocolate. चुप रे, इस इल्यूजन से बाहर निकल. अपने को चॉकलेट नहीं मिलने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला है. Morning, sir. God bless you, sir. Okay, sit down all of you. So today we'll discuss the chemistry test answers which I had given yesterday. Okay? Yes, So sir. give me one question paper. So what is the first answer? D. Second? C. Third? Fourth? Fifth? सर Yes. सर फोर्थ का ए कैसे हो सकता है? ये कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता. ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाएगा. बिल्कुल सही कह रहे हो. तो बेटा ये तो एक्सेप्शन है ना. एक्सेप्शन? पर सर साइंस में रूल थोड़ी ना ब्रेक हो सकता है. ये किसने कहा तुमसे? एक्सेप्शन ही केमिस्ट्री का रूल है. ओके सिट डाउन. सो व्हाट इज द एट्थ आंसर? ए. नाइन्थ? 10th? बी. So tomorrow we'll discuss about acid, bases and salts. Okay? Thank you, sir. Sit down. ये तो गलत है यार. अरे इतना एफर्ट मत हो. केमिस्ट्री में मुझे भी डिफिकल्टी है. अपन एक काम करते हैं, केमिस्ट्री के इंडिविजुअल क्लास लगा लेते हैं. अच्छा क्या होगा इससे? हाँ नहीं होगा क्या? अच्छा ही सिखाएंगे ना. वो तो टीचर्स भी सिखाते हैं. प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं सब्जेक्ट में. सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक नहीं है. लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं उतने तो एक्सेप्शन है. पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. पर फिर कितने का भी कंपाउंड बनाए जा रहे हैं? 4, 6, 8, 10. हाँ अब मेरे को एक सिंपल सी बात बता. एप्पल को तो हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? गिरेगा ना. और ये सिर्फ फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा. केमिस्ट्री में स्टरिक हिंड्रेंस लग जाएगा. कुछ कम पड़ा तो रेजोनेंस. कुछ भी होगा पर एप्पल नीचे नहीं गिरेगा. एक अकेले एटम में कितने मॉडल है? पहले सिखाएंगे डाल्टन्स मॉडल. जब तक समझ में आएंगे बोलेंगे ओ ये तो गलत है. फिर पढ़ेंगे थॉमसन पुडिंग मॉडल. वो भी गलत है. फिर पढ़ाएंगे रदरफोर्ड मॉडल. वो भी गलत है. इसका मतलब पूरा सही कोई भी नहीं है.
रहने देना भाई, अब क्या कर सकते हैं? वैसे कौन सा लेक्चर है आप? मैथ्स. Hey, new maths teacher is appointed for us. अरे साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए तो भी मेरा मैथ्स नहीं सुधरने वाला. अपना तो मैथ्स में डब्बा गोल है. Let's take out the book. Good morning, sir. God bless you, sir. Everybody had their breakfast, right? Yes, sir. Then why are you also lazy? Wish properly. Good morning, sir. God bless you, sir. Have a seat, everyone. Yes, sir. A very good morning. Okay, so we'll study trigonometry. Does anyone remember the ratios? No one? Okay, so listen again. Sin theta is opposite upon hypotenuse. Cos theta is adjacent upon hypotenuse. Tan theta is opposite upon adjacent. Okay, so now we'll move forward. Hey, what are you doing? Arey, we'll move forward in a chapter. Okay sir, sorry sir. Everybody make a table like this. Okay, so write here sin theta, here cos theta. And the values are 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, and 1. You have to write the reverse order in cos theta. 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, and 0. Hey, did you understand what sir taught? No, not at all. और बार-बार पूछने से भी embarrassed feel होता है. आया. कितना कुछ सिखाने की कोशिश की है, पर अगर सिंप्लीफिकेशन के साथ पढ़ाने पर भी बच्चों को नहीं समझ रहा तो शायद कुछ में ही कमी होगी. लगता है कोई नई ट्रिक या कोई नई टेक्निक अपनानी पड़ेगी. साइन 30 कितना होता है? अरे यार, ये तो मुझे भी नहीं समझा. मेरा भी मैथ्स में डब्बा गोल है. नाउ लेट्स होप दैट द टीचर कम्स विद ग्रेट आइडियाज टू टीच अस ट्रिग्नोमेट्री. Good morning, sir. God bless you, sir. A very good morning, everyone. Please be seated. Yes, sir. Okay, so first of all, close your books. Okay, I will be teaching you a new trick so that you may remember the trigonometric ratios. Okay, so see over here. Pandit Badri Prasad. हर बोल. सोना चांदी तोल. Repeat after me. पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तो. ओके, तो इसमें जो पहला कॉलम है P by H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये है साइन के लिए. दूसरा कॉलम B by H मतलब बेस पर हाइपोटेनियस, ये है कॉस के लिए. ओके, तो सब समझ गए? यस सर. ओके, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन. Everybody understood this trick? We will solve question based on this concept tomorrow. Yes, sir. Thank you. Hey, that trick was amazing. Yeah, it is pretty better than bugging up all those values. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले. Sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse and cos theta is equal to base by hypotenuse. Harsh. At last I understood the concept. And even they understood it. So now I am feeling pretty confident and excited to solve those questions. So let's do one thing. Let's bring in the next game, right? So on the count of 3. 1, 2, 3. Sorry, my bad. Technical fault. Technical team, 1 second. Okay? Sorry. So on the count of 3 again, right? 1, 2, and 3. Sorry. Good morning, sir. God bless you, sir. A very pleasant morning, everybody. Have a seat. Yes, sir. Okay, so you ready? Ready to solve this easy peasy a piece of cake questions? Yes, sir. Okay, so we will solve first question. First question. Sin theta upon cos theta. Who will tell the answer? Yes? Sir, tan.
Yeah, right. आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे चप्पर आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे चप्पर खोल दे पर खोल दे पर खोल दे पर खोल दे पर खोल दे Ladies and gentlemen, you could see that there was slight disturbance. We had been hijacked. But rest assured, we have been saved. The hijackers have been taken care of. So I ask you to relax. The hijackers have been taken care of. We are not under hijack anymore. Ladies and gentlemen, after experiencing the culture of Pakistan, now we will be taking off towards the city of skyscrapers, New York. देवियों और सज्जनों, पाकिस्तान की संस्कृति अनुभव करने के बाद अभी हम जा रहे हैं ऊंची इमारतों का शहर न्यूयॉर्क में। It's time now. The drama is about to take a twisting turn. Well, Laksh, let's not check the patience of audience anymore and begin with the story, and let's call our drama students. पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन Wait, did the same question pop in your mind? How will the students study or how will this teacher teach? Even I had the same question. But as great question has great answer, this one also has a solution. That is online classes. But then it possessed its own problems. So let's see how the teacher solved it. Good morning, students. Good morning, sir. Okay, so today we will be studying total surface area. So, is the video visible? Yes, sir. Okay, so in this first question, you have to find the total surface area of cube and cuboid, and you have to find their areas. Am I audible? Hello. घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
sorry students for the disturbance. Okay, so first question. Am I audible? Is sir audible to anyone? Hello, am I audible now? No, sir is not audible. We will leave the class, okay? The class was conducted as expected. I think I should pass the videos of today's lecture. So in this way, the teacher tried to overcome the new challenge, the challenge of online education. But then yes, this costed his good night's sleep. He had to stay up at night and make videos, as during daytime there were disturbances like this. Also there were disturbances like this. Also, few students had the greatest problem of 2020-2021, technical problem. Sir, you are not audible. Sir, my mic is not working. Sir, my camera is not working. So then, one fine day, the teacher thought to himself, Students are not able to study properly in this online system. Moreover, they have their exams in next 15 days. I think I should take offline classes. I need to take those offline classes. Okay, so I will text them. Dear students, the exams are approaching, but few students are not clear with their concepts. I have decided to take the offline classes. Please take the consent of your parents. Hope to see you. चलो अब सारी अरेंजमेंट कर लो. Hey everyone, how are you all? Nice to meet after a long time. वैसे भी ऑनलाइन में तो कुछ समझ में ही नहीं आता था. Come on, we will move in. Yes, come in. So, how are you feeling after coming back offline? Great, sir. Okay, so we'll start our revision without wasting any time. Okay, so first topic, real numbers. Can anyone tell the definition of real number? Yes. The number which can be expressed in the form of P upon Q where Q not is equal to 0 and P is some integer they are known as rational numbers. Yes. Irrational numbers? Yes, sir. The numbers which cannot be expressed in the form of P by Q and which are not equal to 0, so then of that. They started with the offline classes. Great. But did you notice something? The teacher is coughing. Doesn't seem good after all, right? But don't worry. The teacher will make sure that the students do not get infected. So let's continue. May I be coming, sir? Yes. Wait over there. Students, I am suffering from viral infection. I don't want all to be infected. So please take these notes and study properly. Okay, sir. Please take care. Yes, thank you. बहकी सभी जुदा है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है मेरे सही तो रवा है अब है जो है वो समा है मेरे से ऐसी चीज अब चाहे जिंदगी ऐसी चाहे जिंदगी. Now came the exams. What do you think what happened? As expected, the students gave the exams pretty well. ये तो होना ही था, बच्चों और टीचर्स की इतनी मेहनत जो थी. So now let's see what happens next. चलो, लगता है बच्चों की एग्जाम खत्म हो गई होगी. एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ. हेलो. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. यस, गुड मॉर्निंग. हो गई तुम्हारी एग्जाम? हाँ सर. सबके पेपर अच्छे गए? हाँ सर, एकदम अच्छे.
अच्छे तो जाने थे, तुमने जो इतनी मेहनत करके रखी थी। नहीं सर, ये आपने सिखाया, आपकी ही मेहनत है ये सर। वैसे सर आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ ठीक है। चलो फिर रिजल्ट के आने का वेट करते थे। यस सर, टेक केयर सर। On the result day. हे हाय, आज अपन सबके लिए बहुत अच्छा दिन है। अपन को इतने अच्छे जो मार्क्स मिले एग्जाम में। हाँ सच में, अगर सर नहीं होते तो हमें इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आते। ये लो, सब मिठाई खाओ, मैं मिठाई लेके आया हूँ। नहीं नहीं, पहले सर को खिलाएंगे। चलो सर के घर पे चलते हैं। यस। क्या हुआ बच्चों, क्या काम था? आंटी सर घर पर है क्या? हमें सर को खुशखबरी सुनानी है। मैं एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिले तो ये खुशखबरी हमें सर को सुनानी है। सर कहाँ है? क्या हुआ बच्चों, क्या काम था? अंकल, एक्चुअली हम सबको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो ये बात हमको सर को बतानी थी। सॉरी बच्चों, पर तुम्हारे सर नहीं रहे। कैसे हुआ ये? कोविड की वजह से वो आज हमारे साथ नहीं रहे। कह लो ये झूठ है। नहीं बेटा, ये सच है। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे टीचर ने तुम लोगों के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ी थी, वो मैं लेके आती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं रहा। मैं कोविड की लास्ट स्टेज पे हूँ और मेरा बचना मुश्किल है। मुझे सिम्टम्स बहुत टाइम से दिख रहे थे, लेकिन लगा नहीं था कि वो इतने बढ़ जाएंगे। लेकिन अब जो है वो है। मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारा रिजल्ट सबका अच्छा है। मैं अभी भले ही तुम लोगों के साथ नहीं हूँ, लेकिन याद रखना कि मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। गॉड ब्लेस यू बच्चों। यही समान घटना कई बच्चों और स्टूडेंट्स ने अनुभव की है। Around 120 Delhi government school teachers and 1600 teachers in Uttar Pradesh have died of COVID-19 during the second wave of pandemic. A teacher. The role of teacher is very important in a child's life. A teacher is much more important than doctors and engineers because it is the teacher who makes doctors and engineers. While a doctor can only treat and console people, teachers create humans with values. ज्ञान ऐसा तोहफा है जिसे प्राप्त करने से हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, और इस ज्ञान को सारे जग में संपादित करने का काम करते हैं हमारे टीचर्स। वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि यह ज्ञान हर गली, हर शहर, हर देश और पूरी दुनिया में हर जन तक पहुंचे। They are the heart and soul of our education, and education can never exist without them. समय भी सिखाता है और टीचर्स भी। बस फर्क इतना ही है कि टीचर्स सिखाकर इम्तिहान लेते हैं और समय इम्तिहान लेकर सिखाता है। हर रंग मिलकर एक रंगोली बनाते हैं, हर दिए मिलकर एक आरती सजाते हैं। वैसे ही हर शिक्षक एक हजारों बच्चों के जीवन को स्वर्ग बनाते हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट कर कभी प्यार कर हमारे जीवन को अच्छा बनाते। साक्षर बनाते हैं,
और गुरु से बड़ा दानी कोई नहीं। कण कण में बसते हो आप, जन मन में विराजते हो आप। जीवन में अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से मिटाते हो आप। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, तब नई राह दिखाते हो आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हो आप। हे गुरु, हमारे जीवन का आदर्श नहीं बल्कि संपूर्ण संसार का आधार हो आप। भैया ये बहुत दुख भरी कहानी थी। Yes, now we understood that what the teacher is. A teacher is the one who expands your knowledge and provides us a good answer. A teacher develops self-confidence in students and inspires us to achieve our goals. A teacher helps us to be a good human being and a good citizen of our country. I am happy to see that you have understood the importance of teacher. Now, it's your duty to spread this message to everyone who don't respect the teachers, who discourage the teachers, and who make fun of them. नहीं ना यार, ऊपर से कल के टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया।
such a memorable drama. All our emotions may have caught up. Teachers, we all respect you, love you, and will always be grateful for your efforts throughout our lifetime. Dear passengers, it is a request to you to take your medicines with you as your stomach is going to ache from laughter. So here comes Vedant, me and Sankat with their performance. करो जितना भी करो बहुत सही है। फ्री का जितना भी लाभ मिलेगा बहुत सही है हमारे लिए तो। So can we have some noise for our teachers please here? कल के मैच के बाद पहली बार इस आवाज सुनने को मिल रहा है। आज टीचर्स डे, राइट? तो मेरे को लगता है टीचर सबसे डिफिकल्ट जॉब होता है। एक टाइम के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ पर टीचर कभी ना बनूँ। जाने जाता क्या ही करना होता है, चाय तो बेचनी है, The only difference between a prime minister and a teacher is एक देश सुधारता है और एक दूसरा देश का भविष्य। Agree? Yeah? तो टीचर इसलिए हार्ड जॉब है क्योंकि उनको बच्चों का हैंडल करना पड़ता है। मतलब बच्चे इतने अजीब है, इसे ही देख लो। इसकी तरफ देख के लगता नहीं कि 12वीं में इसकी तरफ देख के लगता है कि ये 2 साल पहले ही पास आउट हो चुके स्कूल में से। उस दिन मैं टीचर्स डे की प्रैक्टिस से जा रहा था, एक बच्चा कह रहा भैया म्यूजिक रूम में भूत है। मैंने क्या? भैया 5th-6th पीरियड में हमें आवाज आ रही थी। मैंने कहा पहले तो तू हमको भूत बोलना बंद कर, ठीक है? तो यार अजीबोगरीब लोग मिलते बड़ी मुश्किल से, लेकिन मुझे आराम से मिल जाते। जैसे मेरा एक दोस्त है मुन्ना भाऊ। तो एक बार क्या हुआ, मैंने और मुन्ना ने स्कूल बंक किया था। अगले दिन टीचर ने पूछा कहाँ थे दोनों। मैंने मेरा बहाना बोला, मिस मेरी दादी एक्सपायर हो गई। मिस ने बोला ठीक है। मुन्ना से पूछा, मिस मेरी भी दादी एक्सपायर हो गई। मैं बोला यार एग्जाम में तो कॉपी करता है, इधर भी कॉपी कर रहा। फिर क्या हुआ, मिस ने बोला दोनों ने सेम बहाना दिया था पिछले महीने। मैं बोला हाँ यार। तो मैंने बोल दिया मिस मेरी कजन दादी एक्सपायर हो गई। मैंने इसको पहले बोल दिया भाई कुछ नया और ओरिजिनल बता। मुन्ना भाऊ ने क्या किया, मिस मेरे दादा ने 2 शादी की थी। मैं बोला पागल मरवाएंगा यार। और मुन्ना भाऊ यार मस्त आदमी है सही में, लेकिन उसकी यार लड़कियों से बिल्कुल नहीं बनती। कौन सी लड़कियों से? एटीट्यूड वाली, जिनमें कैसा एटीट्यूड होता है। एक बार क्या हुआ, ट्यूशन टीचर का बर्थडे था, मैं फुगे लगा रहा था क्लास में। वो लड़की मेरे को टेप काट के देते जा रही थी, बहुत लंबे लंबे काट रही थी। मैंने बोला यार थोड़ा छोटा छोटा काट। उसका रिएक्शन, ओ हेलो मुझे काटना आता है, मैं बहुत अच्छे से काट सकती हूँ। मैं एक लड़की हूं तो क्या मुझे काटना नहीं आएगा? बहुत अच्छे से काटती हूं मैं बोल रहा हूं अरे दीदी लेट मी कंप्लीट। मयंक याद आया ना, लेट मी कंप्लीट। अभी ज्यादा बोला ना मैं काटूंगी और चली जाऊंगी। मेरे 2 फुगे फोड़ दिया ऊपर येडी ने। और इन लड़कियों में तमीज बड़ी होती है, मैनर्स वाली होती है। मतलब एक बार ये ट्यूशन में खांस रही थी। कैसे खांस रही थी? सुन रहे हो? के बाद एक और बाजू में अपना जॉनी बाबू इतना जोर से खांसेगा बाजू वाले 2 बंदे ऐसे ऐसे हो जाएंगे।
खांसने के बाद भी इनकी दोस्त बोलेंगी बेबी टेक केयर, डॉक्टर के पास जाओ, कफ ठीक करवाओ। बोलती हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जॉनी भाऊ अपना डकार लेगा, उसका एक दोस्त बोलेगा भाई मूली के पराठे खा के आए ना, बोलेगा हाँ। और ये लड़कियां होती एक और चीज बड़ी अच्छी करती है, हेवी ड्राइवर होती है। मतलब इनको ब्रेक मारना नहीं आता, ये ब्रेक नहीं है इनके पास क्या ब्रेक है? नई नई जूतियां किसका देंगी? इनकी एक दिन जूती किस गई? डैडी को बोली डैडी मेरी ब्रेक्स खराब हो गई। डैडी बोलता है यार अभी तो नहीं लेके दी थी। डैडी मेरी जूतीज। ओह फिर डैडी बोलता है ठीक है नहीं ले लेंगे, बाकी बेटे को मारने के काम आएंगे और क्या। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मुन्ना भाई और ये लड़की दोनों की भसाई हो गई भाई, दोनों एकदम क्लास। ये लड़की आई थी एकदम गर्मी में, यार बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्म है, कहीं मुझे टाइम तो नहीं हो जाए ना। बाजू में मुन्ना खड़े है, ये उसको बोलती है मुन्ना डोंट यू नो हाउ टू बिहेव? बोलता है ये फिर बोलती है लुक एट यू। बोलती अच्छा लगा ना मैं? और ये जो लड़कियां होती है ना, इनके इंस्टा बायो बहुत कॉमन होते हैं। क्या होगा इंस्टा बायो में इसके? पापा की परी, डैडीज प्रिंसेस, आर्मी गर्ल, उसके आगे पर्पल दिल रहेगा उसके आगे। और ये आर्मी कौन सी आर्मी होती है? BTS। बस इसने जिंदगी बर्बाद कर दी भाई। BTS के बारे में तो ना बोलो तो ही अच्छा है, थोड़ा सेंसर लगाना पड़ेगा फिर यहाँ। अच्छा लड़कियों पे बात निकली है तो फिर मैं भी एक किस्सा बताना चाहूँगा। जब वही लड़की जिसके बारे में सार्थक बात कर रहा है, और ये लड़कियाँ ना मतलब लड़कियाँ ना होती भी बड़ी वो है, इंग्लिश बात किसके सामने करेंगी? ऑटो वालों के सामने, पानी पूरी वालों के सामने। जैसे वही लड़की पानी पूरी वाला, जैसे हम जाके सीधे बोलते थोड़ी खटाई देना प्लीज, कैन यू प्लीज पास मी सम एक्स्ट्रा जिंजर वाटर। You know it's very tasty। और आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के ज्यादातर पानीपुरी वाले ना बिना ग्लव्स पहने पानीपुरी सर्व करते हैं। तो फिर वही बिना ग्लव्स पहने पानीपुरी सर्व कर रहा था और उसके हाथ इतने खराब भी नहीं थे, तो फिर उसको क्या बोलती कि ग्लव्स पहन। तो पानी मैंने बोला कि हाथ तो सही है यार उसके, कुछ खराब भी नहीं है। तो हेलो प्लीज आई नीड टू मेंटेन सम हाइजीन, यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हाइजीन। और इनकी ना इंग्लिश बोलते बोलते एक्शंस अलग होती है। जैसे एक लड़की थी, वो एक बुरी लड़की मतलब जो आदत जिसकी खराब थी उसके साथ बहुत घूमते थे। तो फिर मैं बोला उसके साथ ज्यादा मत घुमा कर। नो यार वी आर जस्ट फ्रेंड्स नाउ, जस्ट फ्रेंड्स। अरे जस्ट फ्रेंड्स का तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? मुझे जिंदगी में कभी समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या होता है। अच्छा चलो अब बात लड़कियों से हटा ही देते हैं, नहीं तो फिर आगे में आपको तो पेरेंट्स पे बात लाते हैं। पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स को बहुत बच्चों से उम्मीदें होती हैं। वो ज़्यादातर बाप को, वो हमेशा हर बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा कब जल्दी बड़ा हो, जल्दी जिम्मेदारियां उठाए। और इसी चक्कर में ना कुछ बच्चे बड़े भी नहीं होते। ये वही बच्चे होते हैं जो 15 साल की उम्र तक डायपर पहन के घूमते हैं। क्योंकि बाप ताने भी बड़े देता ना कि तेरी उम्र में मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, तेरी उम्र में मैं किताबें मांग के पढ़ता था, तेरी उम्र में मैं एक ड्रेस धो के पहनता था। अच्छा बच्चा बोले ना बोले बीवी पीछे से बोल देती, अगर ये सब बातें मुझे शादी से पहले बताते ना, आपसे शादी ही ना करती मैं। अच्छा टीचर्स डे के बाद, टीचर्स डे पे बात हो ही रही है तो फिर एक अच्छे टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो कि है एग्जाम्स। इस पे तो भैया सबकी बात लगती है, एक्सेप्टिंग टॉपर्स वो अलग बात होगी। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम याद कुछ करके जाते हैं और आ कुछ और जाता है। जैसे अपना एक साल तक ये ताजमहल के ऊपर निबंध याद करके गया और आज इसको लाल किले के ऊपर गया।
तो इसने शुरुआत कुछ ऐसे की। लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। ये दिल्ली में पड़ती है। प्रधानमंत्री हर साल भाषण देते हैं। यहाँ से ठीक बाहर एक बस स्टैंड है। वहां से बसेस आगरा को जाती हैं और आगरा ताजमहल के लिए बड़ा मशहूर है। इसके आगे पूरा ताजमहल का चेक दिया भैया ने। क्रिएटिविटी देखो भैया बंदे की। और फिर हमारे जनाब के ऊपर बात ना हो तो कैसे बात कर सकते वेदांत साहब। ये तो संस्कृत लिया इन्होंने, इनको भी संस्कृत के ऊपर ऐसा है कि मतलब संस्कृत तो हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इनका पहला वाक्य था तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो कहता तमसो माँ तुम्हारी माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति के घर गई हुई है। अच्छा एग्जाम्स के बाद आते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट्स में ना पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, ज्यादातर माएँ। उनको हमेशा से ऐसा लगता है, और ऐसा लगता ही है और लगता भी रहेगा। जॉइंट फैमिली में ना ऐसा ही होता है, मेरा बच्चा चाहे फेल हो जाए लेकिन देवरानी के बेटे से 2 नंबर ज्यादा आने चाहिए। ये तो होता ही है यार सबके साथ। इसके बाद जब कोई बच्चा फेल हो जाता है ना तो माँ बड़ा सपोर्ट करती है। समझो बच्चा फेल हो गया, बाप मार रहा है कि झट से उनके पास जाके कहेंगे हाय क्या कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट में तो फेल हुआ है। आप भी तो शादी वाले दिन घोड़ी से गिर गए थे, आपसे शादी की है ना मैंने। अच्छा पेरेंट्स की बात हो रही है तो ये जो पेरेंट्स होते हैं उनके किस्से भी बहुत बड़े होते हैं, ज्यादातर पति पत्नी के, और लोग इनके किस्सों को ना एक्ट में नहीं लगते। जैसे एक मैंने ऐड देखी थी जो नान कटाई वाला था, वो क्या कह रहा था, वो पति पत्नी के कुछ किस्से घुसाते हैं। समझो नान कटाई बेच रहा है, वो नान कटाई की ऐड है उसकी। तो गोलू के पापा मेरा खटाई खाने का दिल कर रहा है। फिर पति मतलब घर में खुशखबरी आने वाली है। अरे नहीं खटाई मतलब नान खटाई, वो खिलाई नहीं तो समझो मैंने अपने मायके की टिकट कटाई। पति अरे रुक जा भगवान, मैं आज ही ले चलता हूँ तुम्हें मेरे की मशहूर नान खटाई की दुकान पे। सच? अरे हाँ हाँ सच। फिर तो मैं भी तुम्हें सच में खुशखबरी सुनाऊंगी। इसके बाद आती है बात वेदांत के ऊपर। हो गया। अब टीचर की बात करते हैं। यार टीचर ना बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारे भले के लिए हर बार करते रहते हैं। तो फिर एक बार क्या हुआ, टीचर को लगा शायद जनरेशन गैप की वजह से स्टूडेंट और टीचर के बीच ये कनेक्शन नहीं बन रहा। सर को लगा चलो आज से टीचर और हम दोस्त। ये नहीं कि दोस्त बनेगा, नहीं सीधा दोस्त। तो सर मेरे पास आए, वेदांत कैसा है बेटा ब्रो। ब्रो और बेटा दोनों एक लैंग्वेज में। फिर वो तो भी ठीक है, अगले दिन यो भी आ गया, गूगल पे डाल रहे हाउ टू प्रोनाउंस यो। गूगल कह रहा यो, मेरे पास आए वेदांत यो। इनका मतलब फिर मैंने कहा सर यार ऐसा यो थोड़ी। तो सर कह रहे देखा इतने बार समझाने के बाद भी जब कोई गलत करता है कैसा लगता है। मैंने कहा बात तो सही है सर। और अब बात करते हैं टीचर के फेवरेट लोग, टॉपर्स के बारे में। टॉपर मतलब हमें लगता है कि बहुत शरीफ है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं होता। मयंक को ही देख लो, मतलब किसको मयंक है बहुत पॉपुलर भाई, मयंक है बहुत पॉपुलर। मयंक का डिबेट तुमने सुना, सबने सुना था मयंक की डिबेट। मतलब क्या डिबेट किया भाई। एक शायरी याद आ रही है, उसी डिबेट के ऊपर कहना चाहता हूँ, थोड़ा मुलाहिजा फरमाइएगा सब। कि तुम तो पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओ। एक मिनट कि तुम तो पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। ऐसी घटिया डिबेट दोबारा की तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। मतलब मैं क्या डिबेट कर रहा था यार, वो उसकी तरफ ऐसे 7 बहू वाले सीरियल वाली याद नहीं। अगला सेंटेंस में कही होता रसोड़े में कौन था, यानी गेसेस कौन था। बायजूस था भाई। मतलब उसने खुद को अपने स्कूल का एसआर के समझ रखा है। हाँ माना उसकी हाइट कम है, पर फिर भी वो एसआर के कम और केआर की जगह लगता है। और हम एंड में बात करेंगे हम सबके चाहिए टॉपर लोग। टॉपर मतलब हर बात में फेम के भूखे होते हैं, मतलब
इनको हमेशा फेम चाहिए होता है, सुबह उठने से रात के सोने तक का। एक बार मेरा एक दोस्त वो बैक बेंचर है, उसको मिला कि रोल कर ले, तो फिर उसको मरने का रोल दिया। क्लास में क्या था भाई, देखा क्या मर रहा था मैं, लोग पागल हो गए थे तेरे भाई पे, रोने लग गए थे। मैंने कहा ये फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है, वो तो दूसरों को रोल मिला नहीं, इसने तेरे को दे दिया। फिर वो तो ठीक है, बैक बेंचर लोग जलील बहुत पूरा करते हैं। एक बारी एक बच्चे ने हेयर कट बड़ा अजीब किया था, मतलब वो इंस्टाग्राम वाले रीलर्स लोग नहीं रहते था, पैर ऊपर बाल कलर किए हुए। अगले दिन मेरे को लगा यही करेगा, तेरी काली काली तो वही था मतलब उसको इतना जलील किया, घर पे जाके किया, वो भी सोच रहा क्या इतना बुरा हूँ मैं। माँ कह रही मेरा मुंह मत खुलवा, तेरे को घर से निकालने की बात चल रही थी। मतलब और बाकी के लोगों तो छोड़ो, बैक बेंचर्स को दूसरों के पापा के नाम से बहुत ऑब्सेशन होता है। एक बच्चे के पापा का नाम था सूरज, तो क्लास में सब उसे सूर्य पुत्र कहने लगे यार, मतलब ये कैसा लॉजिक हुआ। इस हिसाब से तो मेरे पापा का नाम विनोद है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं स्टेज पे आके ऐसी मजाक करूं। एंड ऑफ द प्रोग्राम। और हाँ, टॉपर के और एक देवता होते हैं, वो है आइजैक न्यूटन। तुम सबको पता है आइजैक न्यूटन कौन है? नहीं पता है क्या आदमी था यार वो, मतलब क्यों सोचा उसने इतना। मेरे भी साइंस में अच्छे मार्क्स आ जाते, हर बार विकास सर आने वाले यार इनहिलेटर के लिए। मतलब क्यों सोचा, एप्पल गिर गया भाई, गिर गया एप्पल, खा लेना, इतना सोचा कि क्यों गिरा एप्पल। अपन को हिचकी आती है, अपन इतना थोड़ी सोचते कि क्यों हिचकी। अपने को कोई कहता है कि कोई अपन को याद कर रहा होगा, हाँ कर रहा होगा ये कोई याद। मतलब अगर मैं पास में जाता ना, उसको बोले था भाई तू पफ खा, ये मत कर यार भाई तू पफ खा, फिर मेरे को उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे पता है रिस्पेक्ट किस आदमी के लिए, जिसने ये ढूंढा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब ये हुआ ना आइजैक न्यूटन। क्या ब्यूटीफुल चीज, तुमने कभी सोचा इसके बारे में? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक तो भी ठीक है। अगस्त के लिए सोच लिया है बंदे ने, अगस्त मतलब ये कोई रात के दोपहर के 3:30 बजे वाला थॉट नहीं है, ये है रात के 4 बजे वाला थॉट। जब उसने आदमी ने डिस्कवर किया मैंने, तब पीछे से आ जाएंगे, इतना बड़ा हो गया तू। एंड ऑफ द प्रोग्राम, दिस एक्ट इज फॉर आवर प्राइमरी टीचर्स। हम सब दूसरे टीचर्स की बात करें, लेकिन प्राइमरी टीचर्स के बारे में कभी बात नहीं करते। सो fruit salad. Thank you everybody. You have been a great audience. Now that really added humor in the program. I haven't laughed so much as I did today. It really made my day. Now I would like to invite a 12th standard student, Ms. Neha Singh Rajput, to express her words of gratitude towards our dear sisters and teachers. Good morning, respected principal, sister, teachers, and dear students. Today, we have gathered here to contribute to our teachers all over India for their hard work which they do for us. Teaching is one of the greatest profession one can practice. Teaching exists from since time immemorial. In olden days, there was the Gurukul system of teaching in which the students have to leave their homes and had to stay with their teachers. They returned to their homes after several years of training. As the time changed, the system of schooling also changed. Today, we have school system.
The relationship between a teacher and student is something very pure and respectful. Teachers do not differentiate between their students. They love all the children equally and give proper attention. Teachers also help us academically even if that takes some more time. Teachers are like ladders. The ladders let everyone go on the top and stand still and be proud to look everyone getting up on the top. None other can be a well-wisher like a teacher. Teachers are the grid. Every teacher around us teaches us something or the other. They teach us how to sustain in this world. They teach us how to be a better person. Now, I would like to recite a small poem. आप लोग कितनी मेहनत करते हो ना हमारे लिए, हमारी शैतानियों को भी झेलते हो सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए। अभी डांट लगाई और अगले ही पल गुस्सा गायब हो जाता है। हमसे कभी कभी परेशान हो जाते हो, पर सच बताना आपको मजा हमारे साथ ही आता है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि हम जैसी हरकतें करते हैं उस पे गुस्सा आना तो जायज़ है। कभी कम मार्क्स आते हैं तो आप मोटिवेट भी कितना सही करते हो। आपके लेक्चर्स के बीच में अपने किस्से सुनाना, कुछ हंसी मजाक वाली बातें करना, सच में पढ़ाई के दौरान मूड फ्रेश हो जाता है। हमें पता है आप उतने भी स्ट्रिक्ट नहीं हो जितना आप दिखाते हो। आप बहुत प्यारे हो, पर जो भी कहूँ अपने पेरेंट्स से ज़्यादा हम आपके सामने खुले हैं। ऑनलाइन क्लास में भी कितनी मस्ती किया करते थे, तो आज मस्ती से हटकर सोचा कि आपको थोड़ा स्पेशल फील करा दूँ। We are privileged to grow under your guidance. We are proud that we are being cultivated by the finest gardeners. Thank you. Thank you for your warming words. Ladies and gentlemen, NYC Air welcomes you to New York. The local time is 12:15 p.m. Please remain seated with your seat belt fastened and keep the eye clear until we landed on the gate. Use caution while opening the overhead compartment and please remain calm as the culture of New York is waiting for you. देवियों और सज्जनों, NYC Air न्यूयॉर्क शहर में आपका स्वागत करता है। स्थानीय समय 12:15 हुए हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधे रहे और गेट पर उतरने तक गलियारे को साफ रखें। ओवरहेड तुलना खोलते समय सावधानी बरतें और शांत रहें, क्योंकि न्यूयॉर्क की संस्कृति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। कुछ कविता मैंने लिखी है, प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं। गुरु शिष्य को परख लेते हैं, लेकिन शिष्य कभी गुरु को समझ नहीं पाता। शिष्य तो बस रेत पर खड़ा होता है और गुरु के निशानों का पीछा करते जाता है, और इन निशानों के बगैर शिष्य चल नहीं पाता। जिम्मेदारी लेना बहादुर चीज है, पर इस देश के भविष्य की जिम्मेदारी लेना उससे भी बहादुर। इस बहादुरी को मेरा सलाम है। चारों तरफ कोरा, कुछ नजर नहीं आ रहा मेरा रास्ता, मैं देख नहीं पा रहा वो कौन है वो जो मेरा थाम के खड़ा है। इशारे से मुझको वो रास्ता लक्ष्य बताया, मेरे लकीर को कभी नहीं छुपाया, रास्ता में हमने उतना सताया। This
उसको बोल बीच में आया ना So this is beatbox. This is flute. For my next beat, I need my audience to clap on. Some peace someday. You got mud on your face. You big disgrace. Keeping you back into your place. Sing it. We will rock you. Louder. We will rock you. We will rock you. One more time. We will rock you. Can you still hear the walls shaking with those beats? Yes, they truly created a mesmerizing vibe. Trying a new culture and performing it with such ease is truly an appreciating thing. Ladies and gentlemen, this has truly been a long and tiring flight. So let us head to our final destination, which is our home. देवियों और सज्जनों, यह निश्चित ही एक लंबा और थकान भरा सफर रहा है। तो अब हम हमारी आखिरी उड़ान भरते हैं घर की ओर। Ladies and gentlemen, since this was your first time flying the Giuseppe Airs, we would love to hear your reviews and experiences about our airlines. We want any of the teachers who are willing to share their reviews with us. Please kindly come up on stage.
Good morning, respected manager, Sister Agnes, Sister Diana, Sister Principal, Sister Irene, Sister Preeti, Sister Leela, all the staff, and my dear students. Really, we all enjoyed the trip of Mumbai, New York in Josephian Airlines. I feel still I am in New York only. Thanks a lot, children, for taking us to Europe. It's my pleasure to propose vote of thanks to dear Sister Agnes for the backbone of today's program. A very special thanks to Principal Sister Martin for the unique and wonderful program Sister arranged for the teachers. Sister Leela for the support and guidance. All the sisters for the prayer and presence to make this occasion a memorable one. Thank you, dear sisters. God bless you. And my dear students, a very big thanks to all the students for the wonderful performance you performed today to make this Teachers' Day occasion a wonderful one. We all enjoyed a lot. We love you, dear students. Thanks a lot. God bless you. Again, thank you so much. Good afternoon to one and all present here. I feel privileged to express my heartfelt gratitude to the Almighty God, sisters and my dear children for making today's airway journey memorable one. A deep sense of appreciation. We thank our loving children for their untiring efforts. Our sincere gratitude to all our dear sisters for arranging a wonderful program. I would also like to thank to each and everyone to make this event happen. All the programs were excellent. We have all enjoyed a lot. Dear sisters and teachers, आपके सरप्राइज ने हमें चौंका दिया. आपके सरप्राइज ने हमें चौंका दिया. टीचर्स डे के ये प्रोग्राम ने को यादगार बना दिया. Thank you once again. Thank you, teachers, for your motivating words. Now. And we hope that you choose Josephine Airlines whenever you fly the next time. It has been an incredible program until now. I feel like this should never end. Yes, Asif, this has been an incredible program until now, but everything has an end. Everything has an end, but a program is surely incomplete without a bang. So let's end this program with a grand finale. पूरी है तू फायर, तू मेरी
क्या